Namaskar, Acharya. I'm putting question in English. There will be a stage where we don't inquire at all, like initial stages are not even entered into spirituality zone, where we just accept whatever was conditioned and we just keep going. There are also no inquiry. Correct. But then, due to grace or something, we get into getting into scriptures or anything of that sort. And then inquiry starts. When that inquiry happens, we ask questions. Generally, for my case, I kept asking questions to you. And the answers I got has helped me to cut the story behind this conditioning. So when the thought comes out of that conditioning, this inquiry, whatever answer you have given, that thought also comes, and it simply shows that the conditioned way of thinking has no grip at all. So that falls. And it also encouraged me to do action in the direction of the guidance that I got from you. I kept doing that. I kept saying no to where I have to say no, and I kept following where I have to keep going. So I kept doing those actions. But now what I see is this telling of no has become more spontaneous, more natural actually. I mean, there is no resistance to say either no or yes. It just comes that it's no more like I need to think about it or anything like that. It just happens. And I also have seen that the attitude towards the things happening in life has drastically shifted towards a kind of acceptance. It's a negation, but it's kind of a healthy negation. It's no more a burden in my head. The things I have rejected before, or the kind of people I kept rejecting before, I don't hate them anymore. I mean, I don't. The other is false, but not an enemy. Yeah, he's not anymore enemy. Yes. So now it feels like a circle now. Now I accept them in a different way totally. Previously I used to accept out of conditioning, but now acceptance is more of a different healthy kind of acceptance where I don't feel a burden. I respond to the situation as it is. But again, I don't, and then I leave it to them to take it or don't take it, but I keep going in my direction. Yes. So is this a symptom of subtlety of the ego? Is this something? No, don't ask, just act. Okay. See, you accept them, but do they accept themselves? I don't know. They don't. Okay. कोई भी व्यक्ति क्या खुद को स्वीकार करता है? स्वीकार कर रहा होता तो उसकी कामनाएं खत्म हो गई होती ना। हर कामना अपना अस्वीकार होती है। हर कामना क्या कह रही है? मैं जैसा हूँ ठीक नहीं हूँ, मुझे बदलना है, मेरे पास ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, मुझे बेहतर होना चाहिए, मुझे बड़ा होना चाहिए, मुझे यहाँ होना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप भले ही समझ गए कि कोई कैसा है, आपने उसका स्वीकार कर लिया, आपने उसका स्वीकार कर लिया तो आप शांत हो। आपको दिख रहा है कि कौन सी चीज़ झूठी है, कौन सी चीज़ झूठी नहीं है, और अब आप शायद उस स्थिति में हो जहाँ पे जो झूठा है वो आप पर हमला करके आपको झूठा नहीं बना सकता। तो इसीलिए वो जो झूठा है अब आपको दुश्मन नहीं लग रहा। फॉल्स बट नॉट एन एनिमी। ठीक है ना? आपको बस दिख रहा है कि ये सामने अच्छा है, अभी ये ठीक है, माया का खेल चल रहा है, लेकिन वो जो खेल चल रहा है उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, तो मैं मुस्कुरा सकता हूँ। साहब, आपको खतरा नहीं है, जिस पर खेल चल रहा है क्या उसे भी खतरा नहीं है? तो अब उसके लिए काम करो ना, बस यही है, इतना ही है। अपनी सुरक्षा हो गई, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब उसको भी तो बांटो। हमने उसका स्वीकार कर लिया, पर वो तो अपने घोर अस्वीकार में जी रहा है ना। वो अपने आप को अस्वीकार भी कर रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि किस चीज़ को अस्वीकार करना है अपनी। तो एक अंधा अस्वीकार है जिसमें कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ आपको कीलें लग रही है, कांटे लग रहे हैं, तो आप अंधे तरीके से अंधेरे में भाग के कहीं और जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ भी आपको कीलें कांटे लग रही हैं, इधर से उधर भटक रहे हो, अस्वीकार भी कर रहे हो जो अभी वस्तु स्थिति है, लेकिन उस अस्वीकार से तुम्हें कोई बेहतर स्थिति प्राप्त भी नहीं हो रही। ये आम आदमी की ज़िंदगी ऐसी है ना, जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जो है उससे हटकर जहाँ जाते हैं वो भी स्वीकार नहीं होता, तो फिर किसी तीसरी जगह, पांचवी जगह जाते हैं।
तो जो आपको मिल गया है वो दूसरे तक भी लाइए, अब यही है बस। So the way to help that also has changed in a different format. Previously, help was more stringent. I felt. I mean, I used to feel pain a lot while doing that. Now it has more become like a healthy game. A kind of I don't know how to express. I'm helping, but in a आप बहुत different. अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन अपने आप को केंद्र बना के आपकी ओर से हेल्दी है, बहुत अच्छा हुआ है, ये प्रगति है। आपके व्यक्तिगत संदर्भ में ये एक प्रगति है, इन योर पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक हेल्दी बात है, प्रगति हुई है आपकी कि भाई आप दूसरे की जब मदद कर रहे हो तो उसमें कटुता नहीं है, ना आपको एक बोझ की तरह ये बात लग रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने व्यक्तिगत केंद्र से हट करके दूसरे को देखना है, क्योंकि मदद दूसरे को चाहिए ना। तो आपको भले ही ये लग रहा है कि चलो आराम आराम से मदद करते हैं, लेकिन अगर दूसरे को आपातकालीन मदद की ज़रूरत हो तो आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिसको अब ज़िंदगी में बहुत तनाव नहीं रहा है, वो होड़ में नहीं है, वो किसी तरीके की दौड़ में नहीं है, रैट रेस में नहीं है, तो हाईवे पर भी है तो गाड़ी चलाता है 50 की 60 की गति पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मन शांत है और गाड़ी हमेशा हमारी 50-60 पे चल रही होती है मज़े में, और वहाँ इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है तब भी 50-60 पे ही चलाओगे? अपने पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही सोचोगे? तो अपने लिए कुछ हासिल कर लिया, बधाई की बात है। अब जब अपने लिए हासिल कर लिया तो अपनी सुख सुविधा का क्या सोचना। अब अगर ज़रूरत पड़े दूसरे के लिए तो फिर तीव्रता और गति ये भी धारण करना सीखो, वो लीला की तरह हो जाता है फिर कि हमें 120 पे चलाने की कोई ज़रूरत है नहीं, पर तुम्हारे लिए 120 पे चला रहे हैं, हमारी कोई अंदरूनी आवश्यकता नहीं, अब ये लीला है। और जब आप अपनी अंदरूनी आवश्यकताओं और बेचैनी के कारण एक्सेलरेटर दबा देते हो, 120 से भगाते हो, तो क्या हो जाती है? वो माया हो जाती है। इस खेल में जब अपने स्वार्थवश नहीं हो तो लीला कर रहे हो, और इस खेल में तुम्हें अपने स्वार्थ दिख रहे हैं तो माया में फंसे हुए हो। माया से जैसे जैसे बाहर निकलने लगो फिर अब लीला में नाचना भी सीखो कि ठीक है हमें क्रोध आता नहीं, लेकिन दूसरे को हमारे क्रोध की ज़रूरत है तो हम क्रोध की लीला कर देंगे। हमें बोलने में अब कोई सुख नहीं बचा, कोई रस नहीं बचा, पर दूसरे को हमारे शब्दों की ज़रूरत है तो हम दूसरे से खूब बातें भी कर लेंगे। ये लीलाएं हैं, समझ में आ रही है बात? तो अब अपना क्या होता है, अपना कैसा लगता है, इससे थोड़ा थोड़ा ध्यान हटाना है और केंद्र को दूसरों तक ले जाना है, ठीक है? थैंक यू। लेकिन सावधान भी रहना है, दूसरों की मदद तो कर रहे हैं, उसमें खुद बीमार नहीं हो जाना है। तो एक आंख से खुद को भी देखते रहना है और दूसरी आंख से दूसरे को, दोनों पे नज़र रखनी है। फिर धीरे धीरे और जैसे समय बीतेगा अपने पे नज़र रखने की ज़रूरत और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, फिर आप पूरी तरीके से दूसरे की ही मदद पर केंद्रित हो सकते हो।